TRS Clips, that one channel where you get to explore the unexplored realms of knowledge. -9 months पर पहुंचे थे, तो आप कह रहे हो कि पेरेंट्स को एक एक्सरसाइज करनी है जहां बैठकर ऑनेस्ट हाँ, बी ऑनेस्ट टू देमसेल्व्स, सारे नेगेटिव्स लिखने हैं? वो पैटर्न्स जो आप आगे नहीं देना चाहते हो. ओके, बाकी पॉजिटिव पैटर्न्स तो जाएंगे ही. पैटर्न्स आर बहुत पॉजिटिव, सो इट इज़ नॉट पॉजिटिव नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव पैटर्न से भी आप ग्रो करते हो. Serving pattern and unserving pattern. Now, this pattern in my life has served my lineage heal, and we've understood, we've learned the lesson. This pattern need not go ahead. For example, मैं एक practical example cite करती हूँ. There is infidelity which is running in the family. नानी को मिली एक level पे, then the mother, she also saw that, and now this lady also experienced it. अब ये pattern एक बन गया है. She doesn't want it to go to her son or daughter. If she sits on it, if she heals herself, if she comes out of this, if her self-image is good enough, वो ये कर लेती है, तो अब उसके बच्चे तो ऑलरेडी हो ही गए हैं. Then she becomes that medium through which this pattern of infidelity will not be passed on. So was it a serving pattern? Yes, it was a serving pattern because out of it she grew. But उसको अभी पास ऑन करना है? नहीं, उसने हील कर लिया. ये लिनिएज में ये ट्रॉमा अब खत्म हो गया है, लर्निंग पैटर्न खत्म हो गया है. अब वो इस बारे में सोचेगी भी नहीं. एंड देन शी कैन जस्ट पास ऑन लॉयल्टी, लॉट ऑफ लॉयल्टी एंड इंटीग्रेशन इन अ मैरिज for her kids. Why I'm talking about this is a very common thing which keeps on coming in the society these days. That's why. So अपने बच्चों में वो loyalty and integration of a family pass on कर सकती है. पॉजिटिव चीजें भी लिखनी है? जरूरत नहीं है, पॉजिटिव तो अपने आप ही आ जाएंगी. ओके, सो यू राइट व्हाट यू वांट टू स्टॉप. Yes. और ये होना चाहिए -3. -3 पे आइडली. If you want to be a baby, you want to be a parent, then you sit on it as soon as possible. ओके, अभी इन 3 महीनों में क्या दोनों फादर और मदर को खुद के बॉडीज को भी प्रिपेयर करना है? या ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन अपनी जगह है, नींद अपनी जगह है, और एक्सरसाइजेज अपनी जगह है. ये सब चीज़ें हैं. उसमें आई विल नॉट गो बिकॉज दीज आर मोर और लेस दैट वी नो व्हाट टू डू. बट ऐसे कुछ रूल्स हैं? हाँ, मतलब सबसे ज़्यादा फोलिक एसिड शुरू कर देते हो, and or you start eating healthy, you start cutting on your junk, you stop eating packaged food or aerated drinks वगैरह आप बंद कर देते हो लेना, aeration वाले colas and all, and then you try to sleep for 8 hours because that helps in आपका मतलब sperm production उससे बढ़ता है, and quality of egg is also good if you're sleeping for good 8 hours. You know, it also reflects there. I know. यहाँ आई थिंक हम बायोलॉजी हाईलाइट कर रहे हैं टू मेक योर बॉडी केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ चाइल्ड, बोथ द पार्टनर्स. Healthy child. हेल्दी चाइल्ड. मैं स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से भी जानना चाह रहा हूँ. Okay. ऐसे कुछ रूल्स है कि गर्भ संस्कार करने के लिए वेज बनना ज़रूरी है, अल्कोहल ना पीना ज़रूरी है? Ideally, yes. इट्स बेटर. It's better. Okay. Have you worked with non-veg clients or Yes, a alcoholic lot. clients? A lot. I tell you again, now यहाँ पे ना बहुत क्वेश्चन मार्क्स आ जाएंगे, बट spirituality has got nothing to do with whether you are vegetarian or non-vegetarian. I feel उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता. You could be complete vegetarian and rotten inside your mind. You could be heavily on meat and everything and still be very pure and untouched. Now, I am not validating कि I am a pure vegetarian myself. That is my choice. I am not saying कि vegetarians बहुत अच्छे होते हैं और नॉन वेजिटेरियंस बहुत ख़राब होते हैं, बट मैं ये कहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी का इन सब से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है. हाउएवर, इन योर इनिशियल फेजेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इफ़ यू आर practicing, you are vegetarian and away from these distractions like alcohol and all, it helps you focus better. But एक पॉइंट पे आने के बाद you have your own choices. Okay. And तो गर्भ संस्कार के अब देखो मैं बताती हूँ क्यों. मैं आपका क्वेश्चन Sure. समझ गया. हम
मीट के लिए क्यों मना करते हो इस टाइम में? आप जो भी खाना खा रहे हैं, एक मदर जो भी खाना खा रही है वो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसके बेबी की बॉडी बनने का. इट एवरीथिंग फॉर द बॉडी टू फॉर्म इज द फूड दैट द मदर इज ईटिंग. अब कोई आप एनिमल इनटेक कर रहे हैं, आई विल बी साउंडिंग अ बिट क्रूड, लेकिन मैं ये बोलती हूँ, जब उस पर्टिकुलर एनिमल को स्लॉटर किया गया होगा तो उस एनिमल को एक सोल के लेवल से आप देखो, उस वक्त उसकी क्या भावना रही होगी, क्या Fear. इमोशन रहा होगा, फियर, या गुस्सा. है ना, या एंगर या गुस्सा या डर, दो ही चीज़ें रही होंगी. एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ट्रांसफॉर्मेशन वी नो दिस. अब वो जब स्लॉटर हुआ तो वो जो एनर्जेटिक इमोशन उसका था वो तो उसकी बॉडी में ट्रैप हो गया. अब वो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म कैलिब्रेशन ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी में होगा जब आप कंज्यूम करोगे. अब क्योंकि ये नया शरीर एक बन रहा है, द लास्ट थिंग यू वांट इज टू कंस्ट्रक्ट दिस पर्टिकुलर जीव का शरीर विद ऑल दीज एनर्जीज. आप ये नहीं चाहोगे, इसलिए हम वेजिटेरियन डाइट है उसको बोलते हैं आप लो और नॉन वेज को मत लो. This is only for women or even the father? Ideally, women need to practice it a lot more. लेकिन वो घर का एनवायरनमेंट कैसे बनेगा? फादर का बड़ा इनडायरेक्ट रोल होता है, लेकिन फादर का पार्टिसिपेशन 50% से भी ज़्यादा होता है अपनी प्रेगनेंसी में, 100% ही होता है, बिकॉज ही इज़ द वन हु इज़ क्रिएटिंग दैट एटमॉस्फेयर फॉर द वाइफ. दोनों ही नॉन वेज लवर्स हैं और आप तो दबा दबा के पेले जा रहे हो, खाए जा रहे हो, और उसको बोले नहीं तुम ये खाओ, तुमने तो टमाटर खीरा खाना है. आई मीन व्हाट आर यू डूइंग? Yeah. So indirectly, you know what I'm saying. It Yeah. has to be a partnership where both of them agree to a certain diet, a lifestyle, because it's their kid. अभी एक बायोलॉजिकल सवाल है. हाँ. During pregnancy, does it or does it not affect the mother's health if she is or she is not pure vegetarian? Directly नहीं, उसको नहीं मतलब फर्क अगर पड़ेगा. आप अंडे भी नहीं खाते, but उसको क्या फर्क पड़ेगा? उसकी बॉडी तो 20, 25, 30 साल से सब खा ही रही है ना. okay. It's not for her. It is for the baby. And baby's consciousness. क्योंकि एक नैरेटिव है, आई रिमेंबर डूइंग अ डाइट पॉडकास्ट सम टाइम अगो, जहाँ किसी ने कहा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज गुड टू हैव अ हायर प्रोटीन इनटेक, देयरफॉर ईट एग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. Yeah. You go to Europe, you go to US, you go to all these countries जो पूरा आर्कटिक के पास रहते हैं वो तो खाते ही हैं. You know, it's the main food is that only. So उसकी direct उसकी health पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा. She can eat whatever she wants, but what we are talking about right now is consciousness per se for this baby. Okay. So it's more ideal to be pure veg during It's Garbhasanchar. more ideal to turn towards being a vegetarian, yes, for sure. Okay. It can help. It is, though it is not like a yardstick कि नहीं किया तो भाई सब बेकार हो गया लाइफ में, but majorly if you can contain yourself वहाँ पर तो it does some help. बट वो बेसिक नहीं है, वो प्राइम नहीं है, उसके ऊपर बहुत कुछ है जो प्राइम है. प्राइम क्या है? परसेप्शन, थॉट्स. थॉट्स. आपके थॉट्स कैसे हैं? माँ, आप उसको पूरा प्योर खिला रहे हो, घर का घी निकाल के दे रहे हो, A2 में खिला रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन दैट वुमन शी इज़ नॉट फीलिंग सेफ इन हर लाइफ. उसको वो कुशनिंग नहीं मिल रही है हस्बैंड से जो मिलनी चाहिए, या घर का एनवायरनमेंट वैसा नहीं है जिसमें उसको लगे मैं अपने बेबी को लेकर आऊँगी तो यहाँ पे सबकी नर्चरेंस होगी अच्छे से. एक हॉस्टिलिटी का एनवायरनमेंट है, तो क्या ही कर लोगे आप प्योर वेजिटेरियन बन के? उसका जो दैट फीलिंग ऑफ सेफ्टी, दैट फीलिंग ऑफ लव एंड नर्चरेंस नहीं है ना, तो फिर ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं. दीज थिंग्स आर एडेड advantages to the core, which is how safe, how at ease the mother is. Easiness is the word. She has to be easy in her entire being and not burdened. Basic. ये होती है फादर की इनडायरेक्ट प्रेगनेंसी ड्यूटी. To provide her with the cushioning and nurturance 100%. Okay. 100%. ओके. एंड अगर वो वेज बन रही है 9 महीनों के लिए एटलीस्ट, इसके ऊपर तो वो तो एक आइसिंग ऑन द केक है. ओके. ओके. इट्स लाइक द गाय डूइंग द करवा चौथ व्रत आल्सो. ओके. ओके, मूविंग ऑन. या क्या कर रहे? हाँ, ओके. -3 months पे नोट बनानी है, बॉडी को प्रिपेयर करना है और एनवायरनमेंट प्रिपेयर करनी है. आपको सबसे पहले
ये सोचना है बैठ के दोनों को, हम अपनी लाइफ में ऑनेस्टली कितने रिलैक्स्ड हैं, कितने इजी हैं. उतनी ईजीनेस और रिलैक्सेशन में भी एक्सटर्नली ना हो, क्योंकि वर्क प्रेशर होता है, डेडलाइंस होती हैं, टाइमलाइंस होती हैं, वो सब सबके साथ होता है. लेकिन उन सब के बावजूद आर यू एबल टू ब्रिंग ईजीनेस एंड रिलैक्सेशन इन योर लाइफ? If you are in that state, then it is ideal to plan for a baby. ये बहुत cushioned, amazing energy है एक बेबी को लाने के लिए. Easiness and relaxed state of mind. And I'm not talking of love here. वो हम मान के चल रहे हैं, वो है ही. But easiness and relaxation. 3 महीनों के दौरान क्या करना है? कुछ करना है या सिर्फ इसी पर फोकस? देखो, सबसे ज़्यादा तो आप अपने जो एंसेस्ट्रल बैगेजेस हैं, ट्रॉमास हैं, वो करो. आई 100% टेक ऑल माई पीपल व्हेन आई एम डूइंग अवेकनिंग इन वोम विद देम थ्रू द एपिजेनेटिक क्लियरेंस. इट इज़ कॉल्ड एपिजेनेटिक क्लियरेंस. सबको 4th जनरेशन के साथ बैठना होता है और क्लियर करना पड़ता है. 4th जनरेशन, वही ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स. हाँ, करना पड़ेगा भाई वो क्लियर. यू कांट एस्केप दैट. बट वो मोस्टली तो जिंदा नहीं है. तो क्या हो गया? उनके परसेप्शन, उनके इम्प्रिंट्स तो आपके अंदर बैठे हैं ना. वो सारे तो हम आगे पास करने वाले हैं. So you have to find out from your grandparents or your parents की. No, फिर there are ways where it comes. This is what I tell. Yeah. पता चल जाता है. wow. We've created such processes through which you can tap into them and you know क्या है और cleanse कर सकते हो. Wow. This is our USP actually. तो हम हर साल पॉडकास्ट कर रहे हैं. ये बहुत ज़रूरी है करना. Ancestral epigenetic cleansing is foundation of a new life on this planet. It must be done. Okay. This is a separate process. This is one separate process, not a generic one. But not unserving traumas को delete मारना, ये सब कर सकते हैं. डाइट वगैरह. आपके जैसे कितने थेरेपिस्ट हैं भारत में? क्योंकि I think we need more therapists. मुझे तो पता ही नहीं मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, मैं क्या हूँ. बट it is something which is just flowing through me. It is something which is just flowing through me. And मज़े की बात ये है कि I've been through my phase of, you just question yourself, ये मैं कर क्या रही हूँ, ये हो क्या रहा है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं क्या हूँ. I've been through that journey and phase in 2013-14. लेकिन अब मैं बड़ी convinced हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने ये procedures किए, right now we have these kids. We call these kids our golden age kids. And we have these children, walking, talking kids. उनके पेरेंट्स हैं, बोलते हैं, बताते हैं. तो जब उन बच्चों को देखते हैं, पेरेंट्स को देखते हैं, लगता है यार ये तो सब काम कर रहा है, करो और करो और करो, ऐसे. थैंक यू फॉर कंज्यूमिंग दिस क्लिप. दोस्तों, अगर ऐसे ही और क्लिप्स एक्सप्लोर करने हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट्स को ज़रूर एक्सप्लोर करना.